हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे LIC को। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा। इसमें हमने इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। क्या है इसकी हिस्ट्री, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, द लाइफ insurance business was nationalized on 19th of January 1956, and the Life Insurance Corporation of India came into being 1st of September 1956, and Life Insurance Corporation of India came into being on 1st of September 1956. Okay. Now, what are the main functions? The functions of corporation shall be carried on the developed life insurance business to the best advantage of the community and the may perform some relevant functions. ठीक है, तो इस तरीके से इसके functions के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। Functions of LIC. First function is to carry on capital redemption, to carry on capital redemption business, annuity, certain business or reinsurance business insofar as such business relating to life insurance. तो फर्स्ट फंक्शन है टू कैरी ऑन कैपिटल रिडेम्पशन बिजनेस, एन्यूटी सर्टेन बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस इन सो फार सच एज री इंश्योरेंस बिजनेस रिलेटिंग टू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. ठीक है. सेकेंड वन फंक्शन इज टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कॉर्पोरेशन इन सच अ मैनर टू इन्वेस्ट the fund of corporation in such manner as corporation may think fit and to take all such steps may be necessary. ठीक है. कौन कौन से स्टेप्स?
स्टेप्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, इंक्लूडिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट until a suitable opportunity arise. थर्ड है टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. ये नेक्स्ट फंक्शन है, टू एक्वायर. ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, सिंपल सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं. टू एक्वायर, होल्ड एंड dispose of any property for purpose of its business, to transfer the whole or any part of life insurance business carried on outside. ठीक है. टू एडवांस और लैंड मनी, एडवांस एंड लैंड मनी अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. टू बोरो और रेज एनी मनी in such manner and upon such security as the corporation may think fit, to carry on either by itself or through the subsidiary any other business, in any case where such as other business was being carried on by a subsidiary on the insurer whose controlled business has been transferred west to the corporation of this act. ठीक है. So mainly LIC is formed and established for the life insurance coverage for the persons. ठीक है. In which number of financial terms used, and that is proceed by the appropriate policy of the life insurance corporations of India. Okay. Now there are number of schemes running. बहुत सारी स्कीम चल रही हैं. That is related to your life, your health, your medical, child policy, as well as senior citizen policies. Okay. So number of the things, number of the policy that is related to the business practices, and LIC provide the better services to the people of the country, so that they can ensure about their future program and policy and the relief, taking the relief for the future prospect. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो LIC के द्वारा यूज किए जाते हैं. तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर the main functions of the life insurance corporation of India. ठीक है. इसकी शुरुआत हुई थी, that is 19th of the January 1956 and came into the force of 1st of September 1956 as a life insurance corporation of India. Okay. So these are the important terms that are related to the life insurance corporations of India, and these are the important functions which performed by the corporations to provide the fair practices to the people. ठीक है. So what is the, here I am asking some questions to you people. What is the part of the primary banking function? अगर मैं प्राइमरी बैंकिंग फंक्शन की बात करता हूँ तो क्या उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है. ठीक है. तो मनी डिपॉजिट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी बैंकिंग फंक्शन. सेकेंड वन क्वेश्चन, the financial institutions was exclusively provide support and assistance for the agriculture development.
तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंट में ही ये टॉपिक पढ़ाया था, जो कि है नाबार्ड। ठीक है, अब नाबार्ड की फुल फॉर्म ऑलरेडी हम अभी ही पढ़ी है हमने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। One question also related to this term, that is, what is the financial institution which provide long term financial support to the industries? ठीक है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? कौन सा है? IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। One question is also related to this term, that is, what are the usually opened by businessmen who have a number of the regular transactions? तो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स किस टर्म में होती हैं? रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में होती हैं। ठीक है, SFI की फुल फॉर्म भी हमने अभी पढ़ी थी। फुल फॉर्म क्या होती है? SFI। SFI स्टैंड फॉर स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने इनिशिएटिव लेता है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो मेन फोकस है किस बैंक के द्वारा है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। गिवन अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी टू द डीलर और ब्रोकर इन द स्टॉक मार्केट। अब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट में हम कॉल मनी एक टर्म है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश करते हैं। इसी टॉपिक को हम कल भी डिटेल में पढ़ेंगे LIC को, और इसको ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पढ़ भी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।